اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ قرآن مجید کے خلاف گہری سازش جو ہماری تباہیوں کا بنیادی سبب ہے، یہ ہے جی موضوع۔ قرآن کے خلاف سازش کیا تھی، اس کی کڑیاں کیا ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، بنیاد کیا ہے، کیوں کی گئی سازش، اس کی وجہ کیا ہے، یہ چلے گا سلسلہ۔ اس نشست میں ہم ذکر کرتے ہیں جتنا بھی کر سکے، باقی پھر آگے چلتا رہے گا۔ قرآن مجید میں ہے ربون الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، سورۃ طٰہٰ کی 50 نمبر آیت ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق کی اور پھر اس کی رہنمائی اس منزل کی طرف کر دی جو اس کی خلقت کا منتہا ہے، ہدایت دی، یعنی کہ جب ثم ہدیٰ پیدا کیا، خلقہ ثم ہدیٰ، پھر ہدایت دی، اس کے ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی، الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ، اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اسے حشو و زوائد سے پاک کر کے اس میں اعتدال پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایسے قوانین و ضوابط مقرر کر دیے جن کے اعتبار سے وہ اپنی تخلیقی منزل ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے، اس کا جو بھی منتہا ہے، یعنی اس منزل تک اس کی رہنمائی اللہ کے مقرر کردہ قوانین کی روح سے ہوتی ہے۔ ان جیسی متعدد دیگر آیات سے واضح ہے کہ اشیاء کائنات کو، جن میں انسان بھی شامل ہیں، رہنمائی عطا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ اپنے لے رکھا ہے نا، اسی طرح یہ ہدایت دینا بھی اس نے، جس طرح قرآن کا وعدہ کہ میں اس کی حفاظت، اسی طرح یہ ہدایت کا بندوبست بھی ہر شے کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اشیاء کائنات میں یہ رہنمائی ہر شے کے اندر ودیت کر دی گئی، ہر شے کے اندر، انسان کے علاوہ اشیاء کائنات میں۔ اسے جبلت کہتے ہیں، کسی چیز کی جبلت جو بولتے ہیں نا، وہ ہے رہنمائی جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، یہ رہنمائی اس وحی کی روح سے عطا کی گئی جو حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے انسانوں تک پہنچائی گئی۔ انسانوں کے لیے یہ بندوبست کیا، انہی میں سے بندے منتخب کیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان پر کتابیں نازل کی اور انسانوں کے ہدایت کا بندوبست کیا۔ باقی انسان کے علاوہ جتنی بھی باقی مخلوق ہے، ان کی رہنمائی ان کے اندر ہے، پیدا ہوتی بس جیسے بھی چلتی، جانور جتنے بھی ہیں، ان کو باہر سے کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری کتاب قرآن پاک اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سلسلہ رہا اللہ تعالیٰ کا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اس وحی کے متعلق فرمایا وَتَمَتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے انسانی رہنمائی کے لیے جو قوانین دینے تھے وہ اس کتاب میں تکمیل تک پہنچ گئے۔ انسان کی رہنمائی لے کے جو اصول و ضوابط دینے تھے، قوانین دینے تھے، جو اس کو منزل تک جنہوں نے پہنچانا تھا، وہ اس کتاب میں آ گئے، مکمل ہو گئے۔ آگے لا مبدل لکلماتہ، یہ انعام کی 115، بعض جگہ 116 ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، تھوڑی سی آیات کا جو فرق آنا ہے۔ اب ان میں نہ تو کسی حق و اضافہ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی تبدیلی کی حاجت، مکمل اور غیر متبدل ضابطۂ قوانین خداوندی۔ بات ذہن میں رکھنی ہے، قرآن کے خلاف سازش کیوں ہوئی، کیوں کرنی پڑی اور کیا ہوئی، پھر آگے اس کی کڑیاں چلتی جائیں گی۔ یہاں میں آیات کی بات کی، فرق کی، میں تھوڑا سا بتا دوں۔ جیسے الحمد شریف ہے، اس کی آیات آپ دیکھیں مختلف قرآن پاک میں، کئیوں نے نمبر دیے ہی نہیں، کئیوں نے اگر دیے ہیں تو 6 بنتے ہیں، آپ اگر وہ دائرہ سا دیکھیں، آپ گنتی کریں تو 6 بنیں گے۔ وہ بسم اللہ کو ڈال کے اس میں اس کو 7 بناتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے پہلے نہیں، کسی کے بھی نہیں ہے، یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے یہ آیات کا کچھ فرق آتا ہے۔ یہ میں نے 115، ممکن ہے آپ جو قرآن پاک کھولیں اس میں یہ آیت 116 نمبر۔ خیر،
चूंकि इस ज़ाब्ता को हमेशा हमेशा के लिए और तमाम नौ इंसानी के लिए सरचश्मा हदायत करार दिया गया था, इसलिए इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ले लिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लाहु लहाफ़िज़ुन, हिजर की 9 नंबर आयत। यकीनन हम ही ने ज़ाब्ता कवानीन को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इसके खिलाफ साजिश की बात हो रही है। यह है कुरान करीम की पोजीशन तमाम नौ इंसानी के लिए अल्लाह की तरफ से आखिरी मुकम्मल गैर मुतबद्दल महफूज ज़ाब्ता हयात। कुरान करीम में ताकर्दा रहनुमाई इंसान की पूरी जिंदगी और उसके हर गोशे को मुहीत है, घेरे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके असल और असास को चंद अल्फाज में समटा कर बयान करना चाहें तो उसके लिए एक तमहीदी हकीकत का समझ लेना जरूरी होगा। वो तमहीदी हकीकत ये है कि यूं तो दुनिया में आगे बात, ये बात गौर से सुनने वाली है, हर को दुनिया में एक फर्द दूसरे फर्द से अलग, एक नस्ल दूसरी नस्ल से जुदा और एक कौम दूसरी कौम से मुख्तलिफ नजर आती है। लेकिन अगर नौ इंसानी की तारीख पर गहरी नजर निगाह डाली जाए तो शुरू से आज तक इंसानियत दो ही तबकों में बटी हुई मिलेगी। यहां से शुरू होती है ये साजिश की बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुरान के खिलाफ साजिश दो तबके हैं। ये कौन से दो तबके हैं? एक तबका वो जो मेहनत और मशक्कत करके कमाता है और दूसरा वो जो इनकी मेहनत के हासिल को गजब करके ले जाता और मुफ्त में ऐश की जिंदगी बसर करता है। ये आप अपने माशरे में देख कौन लोग हैं जो मेहनत और मजदूरी करते जाते हैं, करते रहते हैं। कुछ जो है ऊपर मालकान जिसे हम बोले वो है जो उनकी मेहनत से अयशी कर रहे हैं, जो उनके जो सब कुछ मामलात हैं वो उन लोगों की नीचे जो लोग हैं, मतहत लोग हैं, मुलाजिम जो लोग हैं, उनकी मेहनत का फल वो खाते हैं। वो हमेशा मुलाजिम ही रहते हैं और वो ऊपर बढ़ते जाते हैं। उनका किसी को आप देख लें, किसी कारखानादार को देख लें, कोई मिल मालकान जी जितनी तरक्की करते जाते हैं, कोई दुकानदारें देख लें, प्लाजे वाले देख लें, मार्केटों वाले देख लें, जो भी कोई कुछ कर रहा है। ये दो तबके हैं, यहाँ कोई मजहब नहीं, कोई और कुछ नहीं, बस ये चीज है। ये है जी इस तफरीक जो वजह जहां से अब साजिश शुरू हो रही है। इस तफरीक से बाहमी मफादात में टकराव होता है और इस टकराव का नतीजा फसाद अंगेजी और खून रेजी। ये दो तबके हैं और इन दोनों तबकों का आपस में टकराव रहता है। दोनों के मफादात मुख्तलिफ हैं, होते हैं। जो ऊपर है उनका पैसा कमाना लेना है और नीचे वालों से कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वो कमाएं, उनको वही फिक्स जो तनख्वाह है वही मिलेगी, वो बाकी जो ऊपर वाला है वो सारा वो ले जाते हैं। लिहाजा इनके आपस में मफादात का टकराव है, आजर और जीर का मसला जिसे हम कहते हैं। ख्वाह ये अफराद में हो, ग्रोहों में हो या कौमों में, यही नौ इंसान की बुनियादी प्रॉब्लम है। ये है असल प्रॉब्लम और अल्लाह की वही इस प्रॉब्लम का हल बताती है। आप देखें, दो ग्रोह, उनका आपस में मफादात का टकराव से जो शर्ंगेजी फसादात या इख्तलाफ पैदा हुआ उसका हल कर दिया गया। कौन सी वही जितने भी अंबिया कराम आए उन्होंने यही इख्तलाफ को ही खत्म किया और इख्तलाफ यही था, ये दो ग्रोहों वाला। काबजीन थे ऊपर चंद और नीचे थे दूसरी मखलूक। आप शुरू से देख लें, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आप जो भी जितने भी हैं, आप फरौन को देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम को, या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी का मामला, आगे देखते जाएं आप, सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ये मामला यही है। इस वही की रूह से ऐसा निज़ाम या ऐसा माशरा कायम होता है जिसके असासी असूल ये हैं। क्या करता है वही, क्या करती है कुरान, क्या करता है उस प्रॉब्लम को हल करता है। कैसे हल करता है? वो एक बुनियादी असूल देता है। क्या असूल देता है? वह अनलैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, नजम की 39 नंबर आयत। मेहनत के बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकेगा। क्या सीधा से बन रहा है अनलैसा लिल इंसान के लिए, इल्ला क्या है? बस मा सा, जिसकी उसने कोशिश की। ये असूल है जी कुरान का। तुम्हारा पैसे पर पैसा नहीं बनाना, मेहनत से जो बनता है ये। बहरहाल मेहनत के बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकेगा, दूसरा ऐसा नहीं को करेगा। मेहनत का ही फल है बस, और कोई नहीं।
बुनियादी चीज जो समझने वाली है। आगे जी, कुरान क्या है? हर किस्म के इस्तेसाल करने वालों, एक्सप्लॉइटर्स, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटर के लिए मौत का पैगाम, और हर मजलूम, बेकस और बेबस का हामी और मददगार। अब ज़ाहिर है कि मफाद परस्तों का हर ग्रोह इस किस्म के इनकलाब अफरी निज़ाम की शिद्दत से मुखालफत करेगा और अपना पूरा जोर लगा देगा कि वो कामयाब ना होने पाए। सीधी सी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पहले पहल सारे गुरबा ही होते हैं। हर नबी के साथ पहले पहल गुरबा ही आते, क्योंकि वो जो दावत देता है, वो जो दावत होती है, वो उन गरीबों के मफादात की हिफाजत करती है, और जो ऊपर गासिब में बैठे हुए जो मफाद परस्त हैं उन पर जद पड़ती है। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, उन पर जद पड़ती है तो वो उसकी मुखालफत करते हैं, उस दावत की, और दावत लाने वाले को धमकियां देते हैं, वो कामयाब ना होने पर पूरा जोर लगा देते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा निज़ाम की जिस शिद्दत से मुखालफत हुई, इसकी तफासिल कुरान मजीद में शर बस्त पे मज़कूर है, आप भी जानते हैं। आपने किस तरह कितनी तकलीफ, और तमाम अंबिया कराम ने, बहुत सारे अंबिया कराम ने कितनी तकलीफ इस चीज के लिए उठानी पड़ी। ये उन मफादात जो ग्रोह है उनकी तरफ से मिलती थी, जो वडेरे थे, जागीरदार थे, जो बड़े थे, जिनके मफादात पर जद पड़ रही थी। ये मुखालफत इनफरादी तजादात से लेकर जंग के मैदानों तक फैली हुई थी। जंग भी उनको करनी पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार होते थे। वो की उन्होंने जंग, ये जितनी भी हमारी जंगें हुई हैं, जंगे बदर और जंगे उहद, ये वही चीज थी। वो उनको ये निज़ाम पसंद नहीं था। जब वो लोग इन कोशिशों में नाकाम हुए तो उन्होंने मुफाहमत की कोशिश शुरू कर दी। अब देखिए, अब ये चीजों को आप अपने यहाँ मौजूदा हालात में भी मुंतबिक करते जाएं। जब वो वहां कामयाब नहीं हुए और दावत देने वाला अपनी बात पर डटा रहा, अड़ा रहा, तो फिर उन्होंने आगे फिर क्या किया? भी ये तो बंदा नहीं, वो कहता मेरे एक हाथ पर चांद और एक हाथ पर सूरज रख दो, मैं तो दावत से बाज नहीं आऊंगा। उन्होंने लालच दिया ना, खूबसूरत लड़की चाहते हो, माल का ढेर चाहते हो, अमारत चाहते हो, तो मैं लीडर बना दिया जाए तो वो बन जाओ, लेकिन ये जो काम तुम कर रहे हो इसको छोड़ दो। तो फिर ये जवाब हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फिर वो कंप्रोमाइज की तरफ आते हैं। अब भी जैसे कंप्रोमाइज, मुफाहमत की शर्त क्या थी, फिर वो मुफाहमत की तरफ आते हैं। भी आप भी थोड़ा सा नीचे आए, कुछ ले और कुछ दे के जो असूल है उस पर कुछ करें, जैसा कि अब होता है, हो रहा है इमरान खान के हवाले से। भाई बड़ा जिद्दी आदमी है, मानता ही नहीं है कोई बात, तो कुछ ले कुछ दे, इस तरह करके मामला चलते हैं, ऐसे सियासत होती है। ये क्या अड़ गया है एक बात पर, नहीं नहीं बस ऐसे ही करना है। आप देखते जाए, हक मुफाहमत नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं करता। एक स्टेज फिर ये आती है, कंप्रोमाइज करवाते हैं वो ताकत वाले, जो कंप्रोमाइज कर गया कर ली है। नवाज शरीफ वगैरह या बेनजीर ने कर ली थी और इसने नहीं की, और इसको कहते हैं ये जिद्दी है जी बड़ा। खैर क्या है, मैं वो मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुफाहमत की शर्त क्या थी, क्या कहते थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्रोमाइज के लिए? वो कहते थे कालल्लाज़ीना ला यरजूना काना ते बिकुरान मिन गैर हाज़ा। ये बड़ी अहम आयत है जी, सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत। वो कहते थे कि तुम इस कुरान की जगह कोई और कुरान लाओ, कोई और कुरान ले आओ। और अगर ये मुमकिन नहीं, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? और बदल हो, इसमें हमारी मंशा के मुताबिक तब्दीलियां कर दो, इसको तब्दील कर दो। ये है जी, कुछ लो और कुछ दो, कुछ आप नीचे आ जाए, कुछ हमारी बात मान लें, कुछ ठीक है जी कुरान भी आ गया, कुछ हमारी बात भी इसमें शामिल कर ले, मिलजुल कर इस तरह कंप्रोमाइज करके चलते हैं। उनके इस मुतालबे का जवाब क्या था? ये कि ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं, ना इस कुरान की जगह दूसरा कुरान लाया जा सकता है और ना ही इसमें किसी किस्म की तब्दीली की जा सकती है। नबी को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ताला के जो भी आयात हैं, जो अहकामात हैं, उसमें ना किसी तरमीम करनी, ना किसी किस्म की तब्दीली करनी। क्या है? वदो लो तुद हे नो फा युद्ध हे नूना, युद्ध हे नून, ये कलम की 9 नंबर आयत है। वहां बात होगी, वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं वो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि कुछ आप अपने मकाम से हटे,
कुछ हम अपने मुतालबे में कमी कर देते हैं, वही कुछ लो कुछ दो। ये क्या है, एक ही पॉइंट पर अड़ गए, जिद पकड़ ली कि यही करना है सारा कुछ। इमरान खान को तो यही किया कहा जा रहा है ना, तो कहते बड़ा जिद्दी है जी ये बंदा, ढीठ है जी, बात मानता ही नहीं, गर्मी में मर रहा है अंदर। को कहते हैं शाहाना जिंदगी गुजार जेल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शाहाना जिंदगी आती, शर्म नहीं आती। बहरहाल अपने मुतालबा की कमी कर देते हैं। वो कहते हैं, ये क्या कहा कलम की 9 नंबर आयत में, ये वो कहते थे इस तरह आप कर लेते हैं, कुछ लो और कुछ दो करके हम चला लेते हैं मामला। इस तरह बाहमी मुफाहमत हो सकेगी। और इसका जवाब ये था कि अपने मकाम से बातिल हटा करता है, हक नहीं। इसीलिए हक और बातिल में मुफाहमत हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद की थी, जिसका अमली मफहूम था खालिस किताबुल्लाह की अतात। लेकिन वो चाहते थे कि इसमें कुछ इंसानों के खुद साख्ता कवानीन भी शामिल कर लिए जाएं कुरान के अल्फाज में। साजिश की बात हो रही है, वो नुक्ता आपने नहीं बोलना। ये अब देखिए साजिश शुरू ये हो किस तरह रहा है मामला। पहले उन्होंने जंगो जदल की, लड़ाई की, वो मारा पीटा सब कुछ किया, नहीं बाज आए। फिर कहा चले को कंप्रोमाइज करने, कुछ अपनी बात मना लें, कुछ हमारी बात मान लें। अब देखिए आगे है जी, ये सूरत मोमिन है और इसकी 12 नंबर आयत है। ज़ालिकुम बिअन्नहु एज़ा दो ए यल्लाहु वहदाहु काफरतुम व इन युशरक बिही तुमिनून। जब उन्हें खुदाए वहद की तरफ दावत दी जाती है तो ये उसके कबूल करने से इनकार करते हैं, और जब इसके साथ इंसानी कवानीन मिला दिए जाएं तो उसे तस्लीम कर लेते हैं। ये थी जी वो क्या करते थे, खालिस दावत उसको नहीं कबूल करते थे। जब उसके साथ युशरिक बेही तो में शिरक करते थे, को शिरक का मतलब ही है अल्लाह के अहकामात में किसी और के अहकामात को शामिल कर लेना, तो फिर वो उस पर ईमान ले आते थे। ये मोमिन की 12 नंबर आयत। इसके बाद फरमाया इसी आयत में, इसके बाद फरमाया कि इनसे कह दो कि फल हुक्म लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। ये 12 नंबर है। कानून, हुक्म, हुकूमत, फैसला सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। कायनात में इक़्तिदार आला उसी को हासिल है, उसके साथ किसी और का हुक्म शामिल नहीं किया जा सकता। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये 40 ये यूसुफ, सूरह यूसुफ की 40 नंबर है। यही कायम रहने वाला मोहकम निज़ाम हयात है, इसमें जरा सा भी रद्दो बदल नहीं हो सकता, हक में रद्दो बदल नहीं हो सकता। उनसे पूछो कि ये किताब जिसे मैं पेश कर रहा हूं इसमें, हाँ ये सूरत अनकबूत की 51 नंबर है, बड़ी अहम है कुरान की फजीलत के हवाले से। अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, 51 नंबर है अनकबूत की। ये किताब जिसे मैं पेश कर रहा हूं इसमें किस बात की कमी है, अंदाजा लगाएं आप। अल्लाह फरमा रहा है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, ये किताब जिसे मैं पेश कर रहा हूं इसमें किस बात की कमी है जिसे पूरा करने के लिए तुम इसमें इंसानी आमेज़श जरूरी समझते हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मफाद परस्त ग्रोहों की मुखालफत और मुफाहमत की कोशिशों के अलरगम कुरान खालिस की बुनियादों पर निज़ाम खुदाबंदी कायम करके दिखा दिया। ये उन्होंने सब कुछ किया, मगर इसके बावजूद आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और जो अल्लाह का हुक्म थी उसको नाफिज कर दिया। इसी को अद्दीन या अल इस्लाम कहा जाता है। इससे इन मफाद परस्तों के दिल पर जो गुजरी होगी जाहिर है उस जमाने में तो वो कुछ ना कर सके। ये देखिए साजिश, ये साजिश शुरू हो रही है अब। उस जमाने में तो वो कुछ ना कर सके, लेकिन कुछ अरसा बाद उन्होंने सारोबारा, वो अच्छी तरह जानते थे कि उम्मत मुसलमान का ये निज़ाम कुरान खालिस की अतात से कायम है। ये जो दो ग्रोह मफादात जो उनकी जो हुई आपस में टकराव, इस वही ने खत्म किया।
तो जो जिनके मफादात पर ज्यादा पड़ी तो फिर उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। बहरहाल इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम कायम कर दिया, लेकिन उनके अंदर कलक रही कुछ लोगों में कि ये किस चीज पर कायम है, निज़ाम खालिस कुरान पर है, कि फिर आगे क्या किया जाए। इसलिए इनकी कोशिश ये थी कि कुरान इस उम्मत की जिंदगी का ज़ाब्ता ना रहे, कुरान से दूर कर दिया जाए। सदर अव्वल के बाद हमारी सारी तारीख इन मफाद परस्तों की इन्हीं कोशिशों की दास्तान है, और इन कोशिशों में इनकी कामयाबी हमारा अलमिया ये कामयाब हुई है। मैं आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सैयद अबू आला मदूदी साहब का एक आर्टिकल, उसमें उन्होंने बयान फरमाया कि असल इस्लाम जो है वह जहली इस्लाम में किस तरह तब्दील हुआ। वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाहिली इस्लाम बन गया। आगे शायद खुद ही सब उसके ही प्रचारकार नजर आते हैं, वो अलग बात हो जाएगी। बहरहाल उनकी जो कामयाबी ये हमारा अलमिया है। सोबत अमरोजा में मैं इस अच्छा हमारे उनकी कामयाबी हमारा अलमिया। यूं तो मफाद परस्त ग्रोहों की मुतद्दद किस्में हो सकती हैं, लेकिन असूली तौर पर इन्हें 3 शिकों में तकसीम किया जा सकता है। वो दो ग्रोहों का पहले जिक्र किया, 2 टकराव। आगे अब मफाद परस्त लोग हैं, उनके आगे 3 ग्रोह हैं। उनका काम है आगे ये क्या करना कि जो चीज कुरान खालिस है इससे लोगों को दूर कर दिया जाए। किस तरह किया जाए ये आगे उनके हर पे बयान करूंगा इंशाल्लाह। उनकी तकसीम जो है 3 शिकों में तकसीम किया जा सकता है। हुक्मरानों का ग्रोह, निज़ाम सरमायादारी अलंबरदारों का तबका या सरमायादार मालदार जो है, और मजहबी पेशवाइयाँ ये मौलवी जो है। हुक्मरान, सरमायादार और मजहबी पेश मौलवी, ये 3 उन मफाद परस्तों का ग्रोह है जो ऊपर वाले हैं, जो गासिब हैं, जिन्होंने हकूक दबाए हुए हैं निचले लोगों के। वो 3 ऊपर वाले ये 3 ग्रोह। कुरान करीम ने फरौन, कारून और हामान के हवाले से इन्हीं का तारफ कराया है। ये 3 ग्रोह हैं जी। फरौन हुक्मरान था, कारून मालदार था, और हामान उनका मजहबी पेशवा था, मौलवी था। उम्मत की निगाहों से कुरान खालिस को उजल करने के लिए हुक्मरान और सरमाया परस्त तबका बराह रास्त कुछ नहीं कर सकता था। हुक्मरान तबका और सरमायादार तबका इस फरीजा को मजहबी पेशवाइयत ही सर अंजाम दे सकती थी। अकीदा ये बनाते, वो नहीं बनाते। इसलिए अव्वल जिक्र दोनों ग्रोह इनकी पुष्ट पनाही करते रहे, और ये ग्रोह सरगर्म अमल रहा। तीनों का ग्रोह रहा। पहले दो जो है इसकी पुष्ट पनाही करते रहे, ये मजहबी पेशवाइयत की, इसको माल प्रोवाइड करते रहे, और हुक्मरान जो थे उनको मरात देते रहे। उनकी तकनीक बड़ी लतीफ और अमीक थी। कुरान करीम ने अपने इफ्तिताह सूरत फातिहा के बाद पहली सूरत में कहा है, यानी कि सूरत बकरा की पहली, ज़ाले कल किताबो ला रैब फीह। अहम बात बड़ी, 2 नंबर सूरत और 2 हुई आयत है। ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई बात नहीं, यानी ये खुद एक किताब है और इसके मदरजात सब के सब हक व सदाकत पर मबनी है। कुरान मजीद के इस सबसे पहले दावा से वाज़ेह है कि इससे वही शख्स या वही कौम रहनुमाई हासिल कर सकती है जिसे इसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। कौन रहनुमाई कर ले सकता है इसे? जिसका इस पर ऐसा ईमान हो कि इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं, शक व शुबा नहीं। जिसे इसमें किसी किस्म का भी शुबा पैदा हो जाए वो इससे रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता। उस मुफाद परस्त ग्रोह का क्या उन्होंने नतीजा निकाला था कि ये कुरान खालिस से जो रहनुमाई ले रहे हैं, अगर इससे हटा दिया जाए, इसमें शक पैदा कर दिया जाए,